and then your transition to Saudi. Over to you. Your mic is still mute. Let me do it again. Yes, now it's working fine. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are well. What should be the preferred communication language for this session, English or Urdu? I think we use both communication mode, English and Urdu. Okay, fine. So, my name is Mohammed Adnan Khan. I'm a fellow chartered certified accountant with a few of the certifications related to fraud and information system auditing from the international universities. From the experience point of view, of course, I have a total experience of 19 years. I started my career with EY. After that, I joined World Bank as a consultant. And after serving for 4.5 years in the World Bank's project, I returned back to the market by joining the Lucky Cement. And then I spent the remainder of the career in Pakistan into multiple, industries. Before coming to Saudi, I was working in international packaging as a group head internal audit. And then, Alhamdulillah, I joined Al Baik in Saudi. The transition from Pakistan or the shift of the career from the Pakistani market to Saudi market is, in my case, a little unusual. I have with me my manager, Mr. Kamran, who of course is working in Middle East and KSA for I think more than 10 years. So he is actually having a better experience of how to, target the Saudi market on and the things which are particular to the Saudi market. I think we can all learn from him in a much better way. Because my hiring in Al Baik is quite a little unusual because I was not searching for jobs in Saudi market or Middle East. On a one fine day, I was approached by the Al Baik's HR directly through LinkedIn. So I did not have, I mean, I don't have any strategy or a proper plan which I have, used in my case that I can tell the other, audience of the meeting. It's a little bit exceptional kind of case. But of course, after spending 1.5 years in this market, I have certain things that, of course, I can guide to the audience, and Kamran can further highlight those points. So that was a little brief introduction about myself. Let's start by talking about the challenges of internal audit department with the perspective of the difference between Pakistani market and Saudi market. So honestly speaking, the internal audit market in Pakistan, Alhamdulillah, is quite professional. It is very groomed, and we have a lot of organizations that recognize the internal audit department as a strategic partner rather than a compliance, kind of job or a job which is primarily responsible for checking payments and stocks. The understanding is, being improved with regards to the, even for the private sector companies also. So it is a well-groomed profession in Pakistan, and Alhamdulillah, it is further grooming. In Saudi, the case is similar, yes, but the difference is that it is, I can say that it's at the next level. In Pakistan, the focus is primarily on the internal audit function, but its integration with the overall GRC model or the enterprise risk management process is not so common. While in Saudi, when we see the internal audit profession, most of the times in the where the department is well managed, you will mostly find integration between the internal audit department and the ERM. Another difference that I have just observed by working for since last 1.5 years is that the modern internal audit tools for data analysis and audit management information systems are more common in Saudi market than in Pakistan, because I think still in Pakistan, some of the organization takes internal audit department as a pure cost center. That's why they usually not invest into the audit management information system or any data analytics software like ACL or IDEA. But here in Saudi, it is quite a lot, in practice.
So for those who are trying to enter into the Saudi market, they, I think, should invest in these two areas to give additional weight to their CVs, and make the process of applying and getting the job more streamlined. So from the challenges perspective, these are the two areas which, as per my experience of, although it's a limited experience, but I have so far observed it to be an extra challenge as compared to the Pakistani market. Otherwise, Adnan, from the just to add one thing, as you have mentioned your experience throughout, mashallah, it's a great experience. हमारे यहाँ जो लोग अब्रॉड मूव होने के बारे में सोचते हैं, दे थिंक कि हम पाकिस्तान में बहुत आउटडेटेड काम कर रहे हैं और हम अपने स्किल सेट को वहाँ पे कैसे सेल करें, ये लोगों के जहन में सवाल होता है ड्यूरिंग द मे बी इफ समवन रिसीव्ड अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम एनी कंपनी अब्रॉड, सो दे वर कंसर्न कि यार मैं क्या चीज़ें इंटरनल ऑडिट की किस तरीके से प्रिपेयर करूं। तो जस्ट गिव अ ब्रीफ के जो प्रैक्टिसेस हम यहाँ पाकिस्तान में फॉलो करते हैं, अब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करता है, मे बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑल टुगेदर दूसरे अंदाज में काम होता है, कोई स्टेट कंपनी है तो अलग तरीके से काम हो रहा है, अगर कोई मल्टीनेशनल है या लिस्टेड कंपनी है तो बिल्कुल अलग अंदाज में काम हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर उसको सऊदी बेस्ड या किसी और कल्चर में एडजस्ट होना है तो अपने आप को इक्विप्ड कैसे करे बीइंग इन पाकिस्तान व्हाइल बीइंग इन पाकिस्तान? Perfect. Okay, so first of all, I would disagree that in Pakistan we are, a little outdated as compared to the Saudi market. No. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कंपनीज लॉ है वो बहुत मैच्योर है, बहुत ग्रूम्ड है फ्रॉम द कंप्लायंस परस्पेक्टिव। हमारा जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है पाकिस्तान में, इट इज़ वेरी रोबस्ट, इट कवर्स एंड टू एंड थिंग्स, इट्स वेरी मैच्योर। सो if internal audit department is properly functioning, especially in a listed company, and covering all the ambits from risk management to compliance and the functional audits also. So basically, we are implementing all those, I would say standards that the Saudi market is also following, because ultimately we are all following the international auditing standards by the IIA. So हम ये नहीं फील करते कि पाकिस्तानी ऑडिटर्स जो है वो सऊदी मार्केट में काम करने वाले ऑडिटर्स के मुकाबले में किसी लिहाज से पीछे नहीं, क्योंकि हम आईआईए के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। हम जो जिस गवर्नेंस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जिन कंपनीज लॉ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, तो वो ऑलरेडी चूंकि काफ़ी मैच्योर हैं, तो हमारी अगर हम उनको रिव्यू करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनकी कंप्लाइंस हम चेक करते हैं, तो हमारी अच्छी एक बेस बनी हुई होती है। बस फर्क ये है, जाहिर सी बात है कि अथॉरिटीज पाकिस्तान में डिफरेंट हैं और सऊदी मार्केट में डिफरेंट। यहाँ लिस्टेड कंपनीज के लिए सीएमए है, कैपिटल मार्केट अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है उन कंपनीज के लिए जो कि लिस्टेड नहीं है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए सामा है। तो जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है ना गवर्नेंस एंड कंप्लायंस का, वो आपको पाकिस्तान का जो कंपनीज लॉ है और जो हमारा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उससे बहुत ज्यादा मैच करता हुआ नजर आएगा। यानी कोई सिमिलर काइंड ऑफ एरियाज जो है ना वो फोकस्ड हैं। बस ऑफ कोर्स रेफरेंसेस डिफरेंट होंगे, कुछ चीजें कम ज्यादा हैं जो हमने ऑब्जर्व भी की हैं, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइन इन पाकिस्तान ऑल्सो। और इंटरनल ऑडिट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो तो थ्रू आउट, आप कहीं भी अगर आप आईआईए के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तो आपका एक ही प्रोसेस होगा, चाहे आप सऊदी में काम करते हैं या पाकिस्तान में काम करते हैं। ग्रेट हाँ ग्रेट ग्रेट। अलबत्ता, जिस तरह मैंने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में हमें जो अपॉर्चुनिटी नॉर्मली कम मिलती है वो ये कि जिन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हर कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती है ऑडिट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में या अदर टूल्स में, तो उसकी थोड़ा सा लैकिंग होती है। वो भी तमाम कंपनीज में ऑफ कोर्स नहीं होती। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि एज सच हमें ये फील करना चाहिए या ग्रेट एज ग्रेट। सच कोई सिग्निफिकेंट गैप है। अदनान साहब, हम इस सेशन के जो आखिरी का कुछ मिनट्स होंगे वो हम इस पे स्पेंड करेंगे कि हाउ टू लैंड अ जॉब इन केस है, तो उस पे हम एक थोड़ा सा अलग से शेड लाइट करेंगे। तो अभी हम ने कल्चरल डिफरेंस की भी बात कर ली और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे भी बात कर ली, किस तरीके से ऑडिट डिपार्टमेंट हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ ये भी अगर बताएं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ किस तरह से स्टैंड करता है। अलमैक माशाल्लाह एक बड़ा रिनाउंड नाम है जहाँ पर आप हैं। इसके अलावा भी कुछ कह लें सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस भी होंगे, इसके अलावा कुछ छोटे बिजनेसेस भी हैं, बड़े बिजनेस भी हैं। तो हाउ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर वर्कड
Okay, so like in Pakistan, we have small organizations here, which are like sole proprietorship. Then we have private limited companies, which are normally called, the joint stock companies. Then we have closed joint stock companies, and then we have listed companies. So structure is almost the same. The terminologies are a little different. For listed companies, as we discussed, we have the guidelines available for the corporate governance by CMA, and I have reviewed it, and majority of it is almost the same because Pakistan's corporate code of corporate governance is also based on the combined code of UK Yes. and SOX of USA. So ग्लोबली लोग उन्हीं चीजों को फोकस करते हुए अपने जो ना गवर्नेंस के रेगुलेशंस को जो है वो यानी चार्ट आउट कर रहे होते हैं। तो चीजें उसी तरह से हैं तकरीबन। और कंपनीज का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बस थोड़ा टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस है, वरना वही लिस्टेड कंपनीज हैं। देन यानी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी हैं, क्लोज्ड एंड स्टॉक कंपनीज हैं, देन फॉरेन सोल कम्युनिटीज भी प्रोप्राइटरशिप। एग्जिस्ट करती होंगी, कहीं पे नहीं करती होंगी, इस तरह भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम टॉप से हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो सीएमए की जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल क्लियर है कि ऑफ कोर्स जनरल असेंबलीज होती हैं, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, देन वी हैव बोर्ड ऑडिट कमेटी, एचआर कमिटीज भी हैं। और बिल्कुल जो प्रिंसिपल हैं गवर्नेंस के उसके उसके अकॉर्डिंगली, लाइक इन पाकिस्तान, the head of internal audit or the chief audit executive directly reports to the board. सो चीजें जिस तरह मैंने कहा कि चीजें सिमिलर ही हैं, क्योंकि गवर्नेंस का जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है वो तमाम जगहों पर एक जैसा ही होता है। और स्टैंडर्ड्स भी हमारे चूंकि सेम है, तो आपको ये नहीं लगेगा सऊदी में और इंशाल्लाह आपकी जॉब हो जाती है कि आपको इंटरनल ऑडिट को दोबारा से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नहीं, आपने वो सेम प्रिंसिपल्स को ही लेके चलना है, बट ऑफ कोर्स जो रेफरेंसेस यहाँ अवेलेबल हैं या जो स्पेसिफिक रेगुलेशंस यहाँ पर हैं, बस उन्हें आपने मैप करना है। लेकिन उसमें भी जब आप जाएंगे तो आपको आर्किटेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। अच्छा, हम अभी जब बात कर रहे थे चैलेंजेस की, तो उसमें एक पॉइंट मैं डिस्कस करना भूल गया कि पाकिस्तान में देखें, अगर आप ऑडिट की फील्ड में काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास एक बेस क्वालिफिकेशन है, सीए हैं आप या एसीसीए हैं, उसके साथ अगर आपका रीजनेबल एक्सपीरियंस है तो यू आर गुड इनफ टू एंटर इनटू द ऑडिट मार्केट, एंड वक्त के साथ आप ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ सऊदी मार्केट में स्पेशली जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो ये कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस लाइक सीआईए, सीएफई एंड सीसा, उनकी बहुत एक्सटेंसिव डिमांड है। तो वो लोग जो सऊदी मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, तो अपनी बेस क्वालिफिकेशन, अगर वो इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी है या एमबीए है, तो उसके साथ साथ सीआईए और सीएफई को प्राइमरीली, और अगर फिर मौका मिलता है तो सीसा भी जरूर टारगेट करें। तो ये सिग्नेचर क्वालिफिकेशंस हैं और वो आपको जॉब लैंड करने में बहुत हेल्प कर सकती है। यानी आप कह रहे हैं कि एसीसी अगर कोई है तो ही मस्ट डू आइदर सीआईए और सीसा इफ ही हैज प्लान टू मूव अब्रॉड, तो वो जी काफी बिल्कुल सपोर्ट करेगा उसको जॉब लैंड जी करने के बिल्कुल लिए। ठीक है। बिल्कुल। दिस इज माय हाईएस्ट रिकमेंडेशन। बिल्कुल, ग्रेट 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 एडवाइस। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि एज ऑफ नाउ, अभी आपने कुछ ऑडिटिंग टूल्स की बात की जो वहाँ पे यूज किए जाते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में लिमिटेड बजट्स होते हैं कंपनीज के पास, वो उतने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते कि वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर बाय करें। सो वहाँ पे एआई का काफ़ी ज़्यादा काम सऊदी में हो रहा है, और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट फंड है उसकी बेसिस पे काफी ज्यादा न्यू स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिट ज़ाहिर है सऊदी इन्वायरमेंट में उसी हिसाब से ऑब्वियसली ग्रो करेगा। तो व्हाट आर यू सीइंग इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स कि वहाँ पे कितना ऑडिट ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, ये टेक्नोलॉजीज को विद इन देयर प्रैक्टिसेस? जी देखें, बेसिक वर्क ऑटोमेशन जो है ना, तो उसके लिए तो जिस तरह पाकिस्तान में भी लोग चैट जीपीटी या इस तरह के रेलिवेंट टूल्स यूज करते हैं डे टू डे प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए या रिसर्च के लिए। बट जो एडिशनल चीज़ है यहाँ पर वो यही है कि जब यहाँ पर आप ऑडिट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, जैसे पॉपुलर जो हमारे पास ऑप्शन है, टीम मेट है, डिलीजेंट है या आइडिया जेन है, तो इन तमाम ही सॉफ्टवेयर ने एआई को एज अ फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट कर दिया है सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो जाता है फिर कि आप फॉर एग्जांपल किसी एरिया की अगर आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, तो रिस्क असेसमेंट से लेकर डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम तक आपको बहुत ज्यादा, यानी आपका टाइम भी सेफ होकर बहुत ज्यादा टारगेटेड आप काम करेंगे। तो ये एक की डिफरेंस है।
यानी अगर आप टूल्स को हटा दें तो जेनेरिक चीज़ें तो पाकिस्तान की तरह ही सेम है यहाँ पर, लेकिन अगर स्पेशलाइज टूल में जाते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है वो एडिशनल ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सऊदी जो गवर्नमेंट है उनकी अपनी जो पॉलिसी लेवल डिसीजन है वो ये है कि उनको एआई के लिए इस रीजन को यानी हब बनाना है। तो आने वाले वक्तों में भी मजीद इस तरह के जो ऑप्शन है वो हमें हो सकता है लोकली भी मिलें। अभी जिन ऑप्शंस का हमने नाम लिया ज़्यादातर इंटरनेशनल हैं, लेकिन हो सकता है हमें फिर लोकल भी इस तरह के बहुत से ऑप्शंस मिलने लगे, और जब वो लोकल होंगे तो फिर लोकल मार्केट या एक्सपेक्ट भी करेगी कि इंटरनल ऑडिटर्स और रिलेटेड प्रोफेशंस जो हैं वो उन्हें फुली यूटिलाइज भी करें। ग्रेट ग्रेट। अब हम मूव करते हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग यहाँ से अभी अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, या प्लान कर रहे हैं कि यार हम दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। सो पहले हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे ऐसे हैं कि जो केएसए का रुख करते हैं, इकामा लेते हैं या यहाँ से बैठ के अप्लाई करते हैं। दुबई भी है, कतर है, ओमान है, तो गल्फ रीजन को लोग टारगेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो यूएस यूके की तरफ भी जाते हैं। हमारे कोलीग्स हैं कि जो बिग फोर में काम कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट उनकी यूके में जॉब लगी और वो वहाँ से मूव हुए। वो एक्सटर्नल ऑडिट में मूव हुए ऑब्वियसली, इंटरनल ऑडिट में भी कुछ लोग मूव हुए हैं। सो इफ आई वुड से कि अगर हमें गल्फ रीजन को एज ऑफ नाउ टारगेट करना है, तो मेरी प्रिपरेशन के लिए अगर मैं रोड मैप बनाता हूँ कि अगले 1 साल में मुझे वहां लैंड करना है, तो रोड मैप क्या होना चाहिए कि मुझे अपने किन किन एरियाज पे इस साल में काम करना है, सीवी स्ट्रॉन्ग करना है, लिंक्डइन पे एक्टिव होना है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए टू गो टू द डायरेक्शन फॉर लैंडिंग अ जॉब इन एनी गल्फ रीजन। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी डिस्कस्ड, हमें टारगेट करना चाहिए कि हम अपनी बेस क्वालिफिकेशन के साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है इस पे यानी स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर द ऑडिट लाइक सीसा एंड सीएफई, उसे हम सबसे पहले कोशिश करें कि वो हम अचीव करें और हमारे रेज्यूमे पर वो आए। उसके बाद ये जो हमने ईआरएम के साथ इंटीग्रेशन की बात की थी, तो चूंकि हम इस मार्केट में ये चीज़ बहुत कॉमन है ओवरऑल इंटर ऑडिट का एज अ जीआरसी फंक्शन के साथ इंटीग्रेट होकर काम करना, तो कोशिश करें कि उस एरिया में अपनी रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और उसको रिफ्लेक्ट करें अपनी सीवी के अंदर भी, और अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल डेवलप करें जिसमें ज़रा अपने सीवी के साथ साथ ज़रा एक्सटेंसिवली चीज़ों को डिस्कस किया हुआ हो। तो ये ज़रूर करें क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इस मार्केट में यानी एडिशनल हैं, इनकी डिमांड पाकिस्तानी मार्केट के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा है। तो हमें इन एरियाज़ में अपने आप को जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ज़रिए मज़ीद हम अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बने कराएं करें और उसको फिर मेंशन करें अपनी सीवी पे भी और लिंक्डइन के ऊपर भी, ताकि जो एल्गोरिथम्स हैं लिंक्डइन के जब तो वो जॉब सर्च में आपकी प्रोफाइल को जो है वो रेगुलरली पिकअप करें। दूसरी चीज़ ये कि ऑल्दो इंग्लिश सऊदी मार्केट में ऑफिशियल लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, बट स्टिल अरबिक की एक इम्पोर्टेंस है। और हम लोगों के लिए जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं तो उनके लिए अरबिक सीखना अदर लैंग्वेज स्पीकर्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली आसान होता है। तो हमें इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम अरबिक को एज अ सेकंड लैंग्वेज जो है वो सीखने की कोशिश करें। और अगर हम सीरियसली इसको टेकअप करें तो विद इन 6 मंथ्स जो है वो आपकी एक मॉडरेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, विच शुड बी सफिशिएंट टू शो ऑन लिंक्डइन एंड योर सीवी ऑल्सो। और जाहिर सी बात है जिस तरह हमने बात की थी कि लिंक्डइन के जो 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 एल्गोरिथम है जिसके अकॉर्डिंगली जॉब सर्च करते हैं रिक्रूटर्स, तो उसमें फिर आपकी सीवी के पिक होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो आपको यहाँ पे एज दे सकती है। तीसरी चीज़ ये कि आप जो सीएमए की रेगुलेशंस हैं उसको पढ़ें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो रेगुलेशंस है उसको पढ़ें, जैटका के जो रूल्स हैं ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी यहाँ पर उसको पढ़ें, और उसको उसका एक समराइज वे में थोड़ा फ्लेवर देने की कोशिश करें अपनी सीवी और प्रोफाइल के ऊपर। दैट शोज कि आप उस मार्केट में और आपकी जो मार्केट जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका आपने गैप जो है उसको थोड़ा नैरो डाउन किया। और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाए, बट आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जरूर हो। और लाइक आई सेड कि जब आप उनको स्टडी करेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि आप बहुत डिफरेंट चीज़ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नेंस का आर्किटेक्चर जो है या जो कॉर्पोरेट लॉ है वो आपको काफ़ी हद तक फेमिलियर ही मिलेगा। तो इसमें इन्वेस्ट करें ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद ये कि आप लिंक्डइन का प्रीमियम अकाउंट लेकर ज़्यादा बेहतर जॉब सर्चिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी रिक्रूटमेंट एजेंट को इंगेज करना ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होगा और होता है। लेकिन नॉर्मली जो लोग
यहाँ पर आते हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो वो लिंक्डइन प्रीमियम वगैरह में तो इन्वेस्ट करते हैं और आज़ाद वीज़ा लेकर भी आते हैं, लेकिन वो नॉर्मली किसी रिक्रूटमेंट एजेंट को इंगेज नहीं करते हैं। तो वो ज़रूर करना चाहिए, वो हाईली इफेक्टिव है। और इसके ऊपर कामरान मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी ख़ास तौर पे हाईलाइट करेंगे इस एरिया को कि इसका क्या बेनिफिट और हम इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप स्पेसिफिकली अगर टारगेट करें, इंक्लूडिंग योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो मार्केट में एंट्री की पॉसिबिलिटी है। और सऊदी मार्केट में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, और जो प्रोफेशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। विजन 2030 के अकॉर्डिंगली बहुत सारी कंपनीज जो है वो बहुत तेज़ी से लिस्टिंग में जा रही हैं, जिसकी वजह से जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इंटरनल ऑडिट की, लाइक इन केस ऑफ पाकिस्तान एज पर द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंशाल्लाह, अगर हम इस तरह स्ट्रेटेजिक मैनर में टारगेट करेंगे तो होपफुली यानी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अदनान साहब ये भी बता दें कि इफ समवन गॉट एन इंटरव्यू कॉल आइदर ऑनलाइन और इन पर्सन, सो maybe the HR personnel either would be from Pakistan or India, और maybe अगर कोई senior position है तो वो आपको ओनर से भी मिलाते हैं. So what do you हम्म। think, what are the winning points during the interview? What should be taken under consideration while appearing for the interview? जिस पे भी कुछ आप टिप्स दे सकें. देखिए, इंटरव्यू तो जो यानी ओवरऑल जो इंटरव्यू के लिए हम जो चीज़ें तैयार करते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम जिन पर काम करते हैं, वो ऑलमोस्ट उसी तरह की हैं जो होती हैं। लेकिन एक चीज़ एडिशनल जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ वो ये कि अगर आपका सीनियर लेवल पर इंटरव्यू हो रहा है, सीनियर पोजीशन के लिए, तो दे एक्सपेक्ट यू टू बी डिलीवरिंग 100% ऑफ द थिंग। तो यहाँ इस चीज़ के लिए मार्जिन बहुत कम होता है, और मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर भी देखा है कि आप किसी चीज़ को लिमिट करें, यानी अपने ऑपरेशनल स्कोप की वजह से, या किसी यानी सेटल डाउन होने में अगर आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपने इनको मैनेज करना है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप फुली डिलीवर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इंटरव्यू के दौरान, वही बात है कि कोशिश कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत अरबिक लैंग्वेज के कुछ कॉमन सेंटेंसेस यूज़ करें, तो वो भी काफ़ी ना एक तरह से गैप कम कर देता है आपके और इंटरव्यूअर के दरमियान। और स्पेसिफिक कोई चीज़ इस तरह की नहीं है जो मैं इंटरव्यू के लिए बताऊं। ऑफ कोर्स हमें यानी जो यहाँ का सऊदी कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा मोडेस्टी को ज़्यादा फोकस किया गया होता है। तो जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप प्रॉपर सूट में होना चाहिए, आपने कोई एक्सटेंसिव ज्वेलरी या रिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ना पहनी हो, तो ये ज़रा पॉजिटिव है। और इन केस ऑफ फीमेल, उनको भी यानी अगर वो थोड़ा सा मोडेस्टली ड्रेस्ड अप हैं, तो ये काफ़ी सऊदी मार्केट में इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है। अदरवाइज, as you know, all the the targeted areas that we usually invest in and train ourselves during interviews are almost अच्छा, the same. as of now, you have spent about more or less 2 years. तो कॉन्टैक्ट्स और पीआर कितने मैटर करते हैं कि मेरे कोई एक्स सीनियर है फला कंपनी में, या टोटल मेरिट पे ही होता है? किस तरीके से वहाँ पे हंटिंग की जाती है, लोग किस तरीके से हायर करते हैं? जी बिल्कुल, लाइक एवरी मार्केट, सऊदी मार्केट में भी जो आपके रेफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और एटलीस्ट आपके सीवी के शॉर्टलिस्ट होने में तो के लेवल तक तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल आप लिंक्डइन पर कोशिश करें कि लोगों के साथ जो है ना वो अपना नेटवर्क बिल्डअप करें, और सिर्फ उनको ऐड ही ना करें, बल्कि कैजुअली समटाइम्स उनके साथ जो है ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करें। इस तरह ये होता है कि लोगों के जहन में रहते हैं। जाहिर सी बात है, अब लिंक्डइन पर आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं हर शख्स के। तो अगर आप किसी के साथ, फॉर एग्जांपल किसी लार्ज कॉर्पोरेशन के हेड ऑफ ऑडिट को आपने ऐड किया हुआ है, और वक्तन फवक्तन आप उनके साथ प्रोफेशनल मैटर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप उनके जहन में रहते हैं। और ये मेरे साथ भी होता है। मेरे भी यानी जो मेरी मेमोरी में वो लोग ज़्यादा रहते हैं जिनके साथ डिस्कशन हो रहा होता है, फिर कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो नॉर्मली फ़ौरन से हमें वो उनकी प्रोफाइल क्लिक होती है। तो ये थोड़ा सा कोशिश करें कि ना सिर्फ लिंक्डइन पे लोगों को ऐड करें, बल्कि उनके साथ आप क्या थोड़ा सा ना ओवर द पीरियड प्रोफेशनल डिस्कशंस वगैरह भी करते रहें, तो ताकि आपका एक तरह से इनडायरेक्ट नेटवर्क बनना शुरू हो। ग्रेट, और एक ग्रेट. और जी. फैक्टर भी है जिसको, ऑफ कोर्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टली, बट यह है कि जो बिग फोर ऑडिट फर्म्स का एक्सपीरियंस है, जी, जी. जो कंटिन्यू करें बिग फोर सर. ऑडिट फर्म्स का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा उसकी यहाँ पर एक तरह से एक्स्ट्रा वेटेज है।
तो वो भी देखा जाता है। एक एक मिनट मुझे देंगे, जी जॉइंट बिल्कुल। में कंटिन्यू कर। I'm sorry for being a little bit interruption. Adnan sir, we are here. Let me check and mute your mic. जी, तो I was discussing the role of the Big Four audit firms experience. So if you have it, of course, like Pakistan and anywhere around the world, सऊदी मार्केट में भी बिग फोर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो नॉर्मली आपके लिए जॉब सिक्योर करना ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान होता है। बट ऑफ कोर्स अगर ये नहीं है तो इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है सीआईए में, सीएफई सीसा की क्वालिफिकेशन में, और जो मजीद हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो उससे भी ओवरऑल आपकी प्रोफाइल की वेटेज इतनी हो जाती है कि आप कॉम्पीट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बात बताएं अदनान साहब कि लेट्स से कि जितने भी फोरम के मेंबर है, ज़ाहिर है कोई काफियों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस तरह के कि हम्म। अगर कोई प्लान करता है कि मुझे ये किसी मार्केट में, लेट्स से सऊदी की एग्जांपल ले लें, तो उनको पाकिस्तानी में रहते हुए अप्लाई करना चाहिए या जिस तरह आजकल लोग इकामा लेके जा रहे हैं तो उस मोड को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सौदाइजेशन भी हो रही है, आपको भी इस चीज़ का आइडिया है, और उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, और हम वहाँ जाएं इतना खर्चा करके, मेरे ख्याल में 8-10 लाख रुपए कुछ उसके एक्सपेंसेस हैं। आप वहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ से जब जॉब छोड़ के जाएंगे फिर वहाँ जाके हंट करना, आपके पीछे फैमिली है, तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं इसमें। तो आप चूंकि वहाँ हैं तो यू कैन बेटर गाइड अस कि क्या, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर हंटिंग अ जॉब। ओके, सबसे इफेक्टिव अप्रोच तो यही है कि आप इस मार्केट में आएँ वीजा लेकर और फिर यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई करें। बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बोल्ड डिसीजन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू लीव योर करंट जॉब। उसके बाद ही फिर आप वीज़ा लेके यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे इफेक्टिव जो मेथड है जॉब सर्चिंग का, वो यही है कि आप यहाँ आते हैं आज़ाद वीज़ा पर और आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर मेंशन करते हैं कि आप ट्रांसफरेबल इकामा के ऊपर हैं और इमीडिएटली अवेलेबल टू ज्वाइन हैं। तो इस वजह से, इन दो फैक्टर्स की वजह से अक्सर जो है वो आपको हायर कर लिया जाता है। तो लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपने जॉब छोड़ के आना होता है, ये चीज़ें मुश्किल तो हैं। लेकिन आई वुड से कि लोगों की जॉब हो जाती है। कुछ लोगों की जॉब 3 महीने में हो जाती है, कुछ को ज़्यादा टाइम लगता है, 6 महीने भी हो जाते हैं। बट अक्सर लोगों की जॉब हो जाती है। ये नहीं कह सकता मैं कि 100% जो लोगों की जॉब हो जाती है, बट ज़्यादातर लोगों की हो जाती है। बट इट डिपेंड्स कि टाइम कितना लगता है। कुछ लोगों को कम टाइम लगता है, कुछ को ज़्यादा लगता है। लेकिन जो लोग यहाँ वीज़ा लेकर आ रहे हैं और यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो है ना सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये सबसे इफेक्टिव तरीक़ेकार है जॉब सिक्योर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। और लेट्स से कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं आज़ाद वीज़ा के अकामा के थ्रू, काफ़ी लोग कम्युनिटीज़ भी बनी हुई हैं, अकाउंटेंट्स की, ऑडिटर्स की, पाकिस्तानीज की, जो उसको हेल्प आउट करती हैं, उनको असिस्ट करती हैं। हमारे भी कुछ सर्कल में लोग हैं कि जो वहाँ पे मौजूद हैं, और कोई अगर लैंड करता है तो ऑब्वियसली उनको रेफर किया जाता है, असिस्ट किया जाता है कि उनके इंटरव्यूज अरेंज हो जाएं। कम्युनिटी एज आई कैप की कम्युनिटी है, एसीसी पाकिस्तान की कम्युनिटी बनी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो किसी ना किसी से आप लिंक करके आप उसको ज्वाइन करके आपके पास काफ़ी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इसमें आ सकती है। अच्छा, एक बिल्कुल। और चीज़ में अगर आप हेल्प आउट करें कि हमें थोड़ा सा पे स्केल के बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हम इंटरनल ऑडिटर की अगर हम बात करें कि मार्केट में लेट्स से कि अगर कोई ऑफिसर लेवल पे है, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव है या ऑफिसर है, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है या मैनेजर है, उसके पे स्केल्स क्या चल रहे हैं,
और इसके अलावा अगर कोई सीनियर पोजीशन पे आता है हेड पे, तो उसका पे स्केल क्या चल रहे हैं, इस बात पे भी बताइएगा। सेकेंडली ये भी ऐड कीजिएगा कि अगर कोई पाकिस्तान में है और वो लेट से के एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी इसकी, तो कितने एक्स पे उसको वहां पे मूव होने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग दिन बाय डे बढ़ती जा रही है। राहत काफी एक्सपेंसिव हुआ हुआ है, जिद्दा में मे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी, फिर टैक्सेस हैं, वैट लग रहे हैं, फिर आपका जो फैमिली लोग आते हैं उनके भी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, टैक्सेस लगते हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा है। तो व्हाट वुड यू रेकमेंड के पहले आप हमें पे स्केल्स के बारे में बता दें, फिर आप बताएं रिकमेंडेड पे स्केल फॉर एन इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। ओके, सो अगर आप अपने कैरियर के मिड लेवल पर हैं, फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हैं और आप अप्लाई करते हैं और आपकी जॉब हो जाती है, तो मोस्ट लाइकली विल बी गेटिंग अ पैकेज ऑफ अराउंड 12 to 15,000। 15,000 की पैकेज के ऊपर अगर आपकी मार्केट एंट्री होती है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड पैकेज। और अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं तो पैकेज कैन गो अराउंड फ्रॉम 20 to 25,000, और फिर उससे अबव जाते हैं तो 30,000, 40,000। और सीनियर लेवल पर अप टू 15,000 का पैकेज भी होता है उन लोगों के लिए जो कि मार्केट में नए हैं या ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका नहीं है। बाय द एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स फिर पैकेजेस मजीद इंप्रूव हो जाते हैं। जहाँ तक कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात है, बिल्कुल अगर आप फैमिली के साथ हैं, आपकी शादी है, आपके दो बच्चे हैं, तो 15,000 के अंदर आप जद्दा में तो रह सकते हैं। और बस ये है कि सेविंग बहुत लिमिटेड हो पाएगी, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सऊदी में सेविंग की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। ऑल दो सेल टैक्स है, फैमिली फीस वगैरह है, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतनी ज़्यादा अभी हाई नहीं हुई है यहाँ पर, ऑल दो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो 15,000 में आप दो बच्चों और अपनी वाइफ के साथ यहाँ रह सकते हैं, और थोड़ी बहुत सेविंग उसमें हो सकती है। लेकिन जो इससे बिलो का जो पैकेज है उसमें भी आपको बिल्कुल अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन फिर शुरू में आप कोशिश ये करें कि फैमिली को यहाँ मूव ना करें, क्योंकि फिर फैमिली के लिए और आपके लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद मजीद आपका पैकेज इंप्रूव हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जहन में रखना ज़रूरी है। अगर आपको जॉब ऑफर्स आती हैं तो आपको ये पर्सपेक्टिव ज़रूर आपके जहन में होना चाहिए। और बिलो 15,000 का इशू है सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली रखने का, लेकिन उससे अबव पे फिर आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह रहते हैं। और अगर आप मॉडेस्टली रहेंगे और जाहिर सी बात है यहाँ पर एज कम्पेयर टू यूएई उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है स्पेंडिंग की जो वहाँ पर होती हैं। आई वुड से अपॉर्चुनिटीज़ और मे बी वाइस वर्सा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर चूंकि चीज़ें लिमिटेड हैं उस फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, तो आप मैनेज कर सकते हैं, सेव कर सकते ग्रेट। इसमें एक और चीज बस एक है, मैं ऐड करना चाहूंगा, आप उस पर कमेंट कीजिएगा कि जब लोग इकामा लेके आते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव अ टारगेट इन माइंड कि मुझे 2 से 3 महीने का में जो है एक जॉब पे लैंड करना है। और शुरू में तो हम सोचते हैं कि हम टारगेट बनाते हैं कि मुझे यार 20 से कम में नहीं जाना, 25 से कम में नहीं जाना, अपना एक प्रोफाइल के हिसाब से। फिर जब वो देखते हैं कि यार टाइम गुजर रहा है, टिक टिक चल रहा है, और मेरा वीजा भी चल रहा है, और ऑब्वियसली आई एम आउट ऑफ पेरोल, तो फिर वो क्या करता है, कोई भी जॉब पकड़ लेंगे एंड में, फिर यही वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाती है। तो हाउ मच इज स्ट्रेटेजी वर्केबल के मैं कोई भी ऑप्ट कर लूं, फिर साल 2 साल बाद एक जंप ले लूंगा, फिर मजीद साल 2 साल बाद जंप ले लूंगा। पाकिस्तान में जॉब स्विचिंग मुझे लगता है शायद बाजार आसान है, तो वहां पे कैसा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हैं। जी, पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ जॉब स्विचिंग जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फिक्स टर्म के। उन कॉन्ट्रैक्ट्स की के टाइम पीरियड के मुकम्मल होने से पहले अगर आप स्विच करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लॉसेज इस तरह की भी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपने रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की जो सैलरी है वो पे करके जाना है। तो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट जब उनके एंड होने वाले 2 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसी पीरियड में जॉब सर्च करते हैं। तो जिसकी वजह से थ्रू आउट द ईयर उनके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती। तो ऑफ कोर्स चूंकि मुश्किल है सऊदी मार्केट में जॉब स्विच करना,
तो इसलिए जो पहली सैलरी आपको मिल रही है मार्केट में एंटर होते वक्त, तो उसको आपने रीजनेबली देखना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अभी आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं, इस मार्केट पे आपको एक्सपोजर नहीं है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो आपने करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो कि उसके बाद फिर आपके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाए और आप अपनी चीज़ों पर फोकस ना कर सकें, और फिर आगे ऑफ कोर्स ग्रो करने में भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आप फोकस नहीं कर सकेंगे अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर। तो उतना एक्सपेक्ट ना करें जितना कि आपको लिंक्डइन पर बाकी लोगों की जॉब्स जब आप देख रहे होते हैं, जॉब एड्स देख रहे होते हैं, उसमें जो सैलरीज नजर आ रही होती है, तो डायरेक्टली आप उतना एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो सैलरीज होती है वो उन लोगों के लिए होती है जिनका मार्केट में ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में या सऊदी मार्केट में एक्सपोजर होता है। तो आप थोड़ा सा मार्जिन रखें, बट ऑफ कोर्स दैट मार्जिन शुड बी रीजनेबल, अदरवाइज आप खुद फिर ट्रबल में आ जाएंगे। और ये मत सोचें कि मैं बिल्कुल जो है ना वो यानी अगर मुझे एम्प्लॉयर लो पिच भी करता है तो मैं दे दूंगा सैलरी, क्योंकि मैं स्विच कर जाऊंगी, फिर बाद में स्विच करना इतना आसान नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, अग्रीड अग्रीड। और बिल्कुल देखभाल के करना चाहिए। ऑब्वियसली यू हैव अ फैमिली एट द बैक ऑफ योर ऑन योर सपोर्ट। तो बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं यहाँ पे। तो आपको पाकिस्तान में फैमिली तो होती है सपोर्ट करने के लिए। जब आप वहाँ होते हैं, डेफिनेटली। ऑब्वियसली आपका एक एक्सपेंस भी चल रहा है, यू डोंट हैव एनी जॉब, तो इट्स क्रिटिकल। सो और इसको बिल्कुल ये भी मैं ऐड करूंगा कि जिस तरीके से आपने एडवाइस दी कि इकामा लेके आएँ, और चांसेस हैं, और काफी सारे हमारे सर्कल में लोग गए भी हैं, और उनकी आई वुड से 80 to 90% पॉजिटिव न्यूज ही आई कि दे गॉट अ जॉब विद इन अ मंथ ऑफ 2 or 3 मंथ, उनको जॉब मिली है, और वो फिर उन्होंने वहाँ पे कैरी ऑन किया है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं ऑडियंस के। इसमें कुछ। I would जी suggest, before taking or starting the session of Q&A, I would like to request Kamran to please या give श्योर us श्योर, a briefing मोस्ट on वेलकम। the, okay। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनके भी एक्सपीरियंस से फायदा उठाएंगे। कामरान साहब, आप जी। अपना इनका ये अलग से आईडी से इन्होंने ज्वाइन किया है। मैं उनको जी अनम्यूट। बिल्कुल। जी, मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। कामरान जी, आप अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा कामरान जी। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। As वालेकुम अस्सलाम। Mr. Adnan he mentioned, I am working with him as a manager internal audit at Albake। और रिसेंटली कोई शायद साल 1.5 साल पहले ही अदनान साहब के साथ हमारी जो है ना ये मुलाकात और ये सब मामलात शुरू हुए हैं। अदनान साहब ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो काफ़ी हद तक एक्यूरेट हैं, लेकिन डेफिनेटली एक्सपीरियंस का फ़र्क रहता है प्रोसीजरल मैटर की हद तक। कि अगर एक चीज़ है प्रोसीजर में कुछ लिखा हुआ है, तो जो बंदा जो है जिसने ज़्यादा कंपनी स्विच की हैं, जिसने ज़्यादा लेबर लॉज के जो है ना धक्के खाए हुए हैं, वो ज़्यादा आपको बेहतर बता सकता है कि बुक की हद तक चीज़ें और होती हैं और प्रैक्टिकलिटीज कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो देखिए, मैंने आई विल टॉक वेरी स्पेसिफिकली कि आपने जो है ना वो जॉब में बहुत लोग आते हैं, बहुत लड़के राब्ता भी करते हैं कि सर हमें जॉब चाहिए। और बहुत लोगों की यहाँ पे जॉब करवाई भी है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप किसी को डॉलर रियाल दे दें, वो इतने आजकल के दौर में वैल्यूएबल नहीं है और वन टाइम है, जितना आप किसी को एक प्रॉपर एक खलूस नीयत से एडवाइस करेंगे। बिल्कुल आप वन टाइम एडवाइस करेंगे, वो फॉर लाइफ उसके साथ रहेगी। और आप बिल्कुल विद ऑल ऑनेस्टी एंड गॉड फियरिंग आप उसको बताएं कि क्या है और क्या नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ग्राउंड पे भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल स्काई रॉकेट भी नहीं होनी चाहिए। जो रियलिटीज हैं आप उसको मुताबिक आपको चलना चाहिए। देखिए, जैसे जॉब मार्केट, जैसे दान साहब ने बताया, मैं अफगानिस्तान तक भी रहा हूँ, अफगानिस्तान में भी रहा हूँ, ओमान, मस्कत, बहरेन और इधर दुबई। तो तकरीबन मिडिल ईस्ट मैं उसमें रहा हूँ। एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी फॉर द यूएस एज वेल, लेकिन मैं वो फैमिली टर्म्स की वजह से नहीं गया वहाँ पे। ऑब्वियसली जो अगर आप एक इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो आपके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। इफ यू आर ऑलरेडी लिविंग इन मिडिल ईस्ट। अगर आप नहीं रह रहे पाकिस्तान से डायरेक्ट आप यूएस जाना चाहते हैं, चांद तो बड़ा है कि यार यूएस का पासपोर्ट है, ये है वो है। बल्कि इनफैक्ट अभी मैं जब आधे घंटे पहले आ रहा था तो आई हैड अ कॉल विद वन ऑफ माय जूनियर। वो ही इज अ डायरेक्टर इन ईवाई लंदन ऑफिस। वो मूव करना चाह रहे हैं ईवाई जद्दा ऑफिस। तो मुझसे वो जॉब करवा रहे थे कि सर आप इसको रिव्यू करें, मुझे बताएं कि क्या मार्केट की नॉर्म्स हैं, मैं कितने पे आ जाऊं। एंड आई वाज शॉक कि वो मार्केट में जो सैलरी चल रही है उससे आधे पे आने को एग्री है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा आप बहुत कम आधे पे आ रहे हो। कहते हैं, आधे पे आ रहा हूँ मैं। तभी वो मुझे दिन में 10 फोन करते हैं कि एक्सेप्ट कर लें। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लो।
तो अभी आपकी कॉल के बाद मेरी उसके साथ कॉल है, उसको मैंने ऑन होल्ड किया हुआ है। लोगों को बेचारों को अंदाजा नहीं होता, बाज का बेचारे कम पैकेज पे आ जाते हैं, बाज ज्यादा की डिमांड में जो है ना वो अपना इकामा, एज यू सेड, कि वो 3 महीने में टारगेट करके आते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं भाई कुछ भी दे दो, बस मुझे दे दो। वॉक ऑफ शेम जब आप वापस जाओगे, वो इट्स नॉट दैट इजी। आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं, आप उन्हें क्या कहोगे जी जॉब लेने गया था नहीं आया? नहीं, यू आर बीइंग अनरीजनेबल। मार्केट में जॉब है, डिमांड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देती हैं चीजों को। तो मैं स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जो है ना वो, ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये भी मैंने पढ़ लिए हैं, और मैंने यहाँ पे एक ड्यूरिंग दिस मीटिंग मैंने एक अपनी नोट्स ले लिए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज बोलना चाहूंगा जितने भी जो लिसनर हैं उनको, कि एक चीज को आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें, सिंस वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, कि जो इंटरव्यूअर है उसको आप बेवकूफ बना लेंगे। ठीक है, इंटरव्यूअर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, इसमें लॉस आपका है। कैसे? मसलन आपने ब्लफ कर दिया, सर मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे ये भी आता है, मुझे दुनिया की हर चीज आती है, और आप अपनी जो है ना वो चर्ब जुबानी की वजह से सम हाउ यू लैंडेड इन अ कंपनी एंड यू गेट द जॉब। होगा क्या? आप प्रोबेशन के अंदर है सर, आप प्रोबेशन में हैं। सऊदी अरेबिया में और पाकिस्तान में डिफरेंस ही सिर्फ जो है ना वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का है। यहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और इवन एम्प्लॉयर भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज गवर्नमेंट इज इन द मिडल, लेबर ऑफिस इज इन द मिडल। और अदनान साहब शुरू शुरू में जब आए थे तो उनको बहुत सी चीजें सुन के बड़ा हैरान होते थे, यार ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कैसे होता है? तो मैंने कहता सर ये सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो लॉलेसनेस है, जिसकी लाठी उसकी बैंड, सॉरी टू से, वो तो ऐसे ही चलता है ना। आपके ऊपर केसेस भी हैं, सब कुछ, आप ट्रेवल कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास एक केस हो जिसकी अमाउंट सिर्फ 2,000 रियाल है, आप ओनर जो है उसका ईसीएल में, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में पासपोर्ट डल जाता है, वो ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको ही हैज टू पे। तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग है मतलब, और मैं ओनर्स वो बात नहीं कर रहा, जो बिलियन डॉलर कमा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, चलते फिरते लोग भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो लॉ है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसलिए मैं, अगर आप लैंड कर भी गए अपनी चर्ब जुबानी की वजह से, किसी भी वजह से, और ट्रस्ट की वजह से, आई वुड से कि आपकी रिकमेंडेशन थी, तो मैंने इंटरव्यू, अगर मैंने आपको ग्राइंड करना था फॉर 1 आवर एंड आई जस्ट टुक एन इंटरव्यू सरसरी सा फॉर 10 मिनट्स एंड आई सेड ओके यार लड़का कह रहा है और मुझे रिकमेंडेशन अदनान साहब ने बोली, तो रख लेते हैं। जब मैं रखूंगा विद इन 1 वीक यू विल गेट एक्सपोज्ड। पाकिस्तान थोड़ी है, मैं आपसे काम दूंगा, टास्क दूंगा, आप काम नहीं करेंगे, आपका कैलिबर का मुझे अंदाजा हो जाएगा, आप रिपोर्ट ड्राफ्ट करेंगे उसमें अंदाजा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको वार्निंग लेटर करूंगा और सेम डे में टर्मिनेट। क्यों? 90 डेज प्रोबेशन है और यहाँ पे एक्सरसाइज होता है प्रॉपर। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें बड़ा सरसरी सा क्विकली बोलूंगा। देखें, अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जॉब लेनी है ना, आप इस चीज का ध्यान रखें कि डेवलप योर सेल्फ, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग। आपकी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर आप, इफ यू आर अ गुड रीडर, आप बुक्स पढ़ते हैं और आपको जेन्युइनली पता है, तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है। दूसरा, अगर आप खुद को डेवलप करेंगे, डेवलप में क्या आता है? क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दोनों। आपके पास यहाँ पे आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो एमबीए हैं प्लस सीआईए हैं, जो बीएस अकाउंटिंग है प्लस सीआईए है। द फर्स्ट थिंग दे डू इज द सीआईए। और पाकिस्तान में रहते हुए आप बड़ा इजीली कर सकते हैं, मतलब 6-8 महीने में आप इजीली कम पैसों में सीआईए कर सकते हैं। यहाँ आएंगे आपको डॉलर और रियाल में फीस पे करनी पड़ेगी, वहां पीकेआर में करनी पड़ेगी। इट विल बी वेरी, ट्यूशन फीस की बात करूँ, इट विल बी वेरी क्विक एंड वेरी चीपर ऑप्शन, वेरी इकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर यू। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपने क्वालिफिकेशन जो है ना 100% श्योर करना है, मेक श्योर कि आपके पास क्वालिफिकेशन है। जैसे ही आप क्वालिफिकेशन इंश्योर करेंगे, इट्स अ सिंपल मैथ, ये कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। सिंपल मैथ है कि अगर मार्केट में, अगर अनक्वालिफाइड 1 लाख लड़का बैठा हुआ है, तो उसके अंदर से जो क्वालिफाइड है ना वो 20% है। तो आप इमेजिन करें, वो जो 80 ऑड आउट होते हैं, वो तो यूं 80 में से आप निकल जाओगे। आप मेक श्योर करें कि आप पाकिस्तान में हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप उसमें क्वालिफिकेशन इंश्योर करें, सीआईए ले लें और सीसा ले लें। सीसा की बहुत ज्यादा डिमांड है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, 75% उसका पासिंग रेट है, सब पासिंग नंबर्स हैं। लेकिन आप अगर सीआईए प्लस सीसा कर लेंगे, आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि अगर सीआईए में अगर आप टॉप 20 में आ जाएंगे, तो सीसा करके आप टॉप 10 में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आप ये कोशिश करें कि जो आप सीवी है वो बहुत प्रोफेशनल बनाएं। मैंने लड़कों की सीवी देखी है, आप यकीन करें, ग्रामेटिकल उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स तक होती हैं, उनको ये नहीं पता कि यूएस
आधा सेंटेंस कहीं से कॉपी किया हुआ चैट जीपीटी से, वो यूएस इंग्लिश में था, आधा कहीं से उठाया तो वो यूएस यूके में था, इंग्लिश यूके में था। तो वो यूएस और यूके की इंग्लिश का आपको फर्क समझ नहीं आया, आपने तो छाप दिया। लेकिन आपने जिसको भेजा वो पढ़ा लिखा बंदा था, उसने कहा यार ये क्या है ये, मतलब अगर आप अपनी सीवी नहीं प्रेजेंट कर सकते, मेरी रिपोर्ट क्या प्रेजेंट करेंगे आप समझ रहे हैं? ये रिस्क होते हैं जो शायद आप नहीं सोचते, लेकिन वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, हम सोचते हैं, एचआर सोचता है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो सोचते हैं। आपकी पूरी की पूरी एक प्रोफाइलिंग होती है, स्कैनिंग स्क्रीनिंग होती है, आप उससे इतनी जल्दी नहीं, अगर आपको जेन्युइनली जॉब चाहिए। अच्छा, आपने सीवी डेवलप करनी है और कोशिश करें एक प्रोफेशनल डेवलपर से। चलते फिरते से नहीं कि आप लिंक्डइन पे जाएंगे हर बंदा ही सीवी सर्विसेज बेच रहा है, मुझे आप $50 दे दें मैं सीवी कर दूंगी, और ये कर, ऐसे नहीं। प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो पीपल हैं जो इस सर्विस में हैं, हिस्ट्री देखें, रिव्यूज देखें, उनसे सिर्फ अपनी सीवी डेवलप करवाएं प्रॉपरली। और सीवी में जान कोई वो नहीं डालेगा, सीवी में जान आप खुद ही डालेंगे। वो तो सिर्फ एक प्रेजेंट इस तरह करेगा सीवी के, यार वाकई उसमें एक जो रिदम नजर आएगा, वो जो है ना आपको गो थ्रू करवाएगा। और उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एआई बेस्ड जो रिक्रूटर होते हैं, वो वहां से सीवी जो है ना आपकी थ्रू हो जाएगी। तीसरा होता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी। आपने अपने ऊपर काम किया, आपने सीवी अच्छी डेवलप कर ली, अब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं एक वीडियो कॉल के अंदर, तो मैं देखूंगा ना आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। सीवी में तो आपने बहुत लंबे चौड़े जो है ना वो बातें लिखी हुई हैं, वो आपको आता कुछ भी नहीं है उसमें से। रट्टे वाला इंटरव्यू कितना दे लेंगे आप? तो अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, अपनी ड्रेसिंग पे काम करें, ड्रेस कोड का पता होना चाहिए, कलर स्कीम का पता होना चाहिए, बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, एक अच्छा माइक हो, वो हो, ये सब चीजें इंच इंच करके फुट बनता है। ये सब चीजें आपकी वैल्यू एडिशन है, जो आपका इंटरव्यूअर आपको जिससे हम कहते थे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो बिल्कुल मैटर करता है। और प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत मैटर करता है। अच्छा, आगे आ जाएं। अपनी पर्सनैलिटी आपने डेवलप कर ली। आप उसके अलावा जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, जो अदनान साहब ने भी कहा था, और स्पेसिफिकली मैंने अदनान साहब को रिक्वेस्ट की थी कि अगर इस तरह का कोई फॉरम है, और बिल्कुल ये एक फी सबिलिल्लाह टाइप चीज है, कि आप कोशिश कीजिए, आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो अथेंटिक ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के, आप वो ज्वाइन करें। उसके अलावा आप जितनी ऑनलाइन, अगर आप जाएंगे टॉप 5 आप वेबसाइट्स उठा लें, जिसमें बैथ है, गल्फ रिक्रूटमेंट है, और दो तीन है, लिंक्डइन है। आप इस पे अपना प्रोफाइल बनाएं और इसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए। हमें पता है क्योंकि आजकल जो है वो जेनजी जो है वो स्क्रॉल करने की आदी है, उसको ज्यादा लिखना और ये चीजें समझ नहीं आती। लेकिन माजरत के साथ जो जिनको आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो अभी भी थोड़े ओल्ड स्कूल हैं। ओल्ड स्कूल से मुराद वो हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, वो जेन्युइन वर्क पे बिलीव करते हैं। डोंट थिंक दे आर स्टूपिड एंड दे आर डम, के आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके और कुछ बना के दे देंगे और उनको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये क्या है। हमारे ओनर 70 ईयर्स के हैं, वो एआई हमें बताते हैं कि भाई आप क्या किस एआई की बात कर रहे हो, ये चीज पॉसिबल है और ये नहीं है पॉसिबल। वो 70 ईयर्स के हैं। सो यू हैव टू थिंक कि अदर पर्सन इज स्मार्टर देन यू कैनॉट आउट स्मार्ट देम। तो अगर वो बंदा आपको कह रहा है तो यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। लिफ्ट काम नहीं करेगी, लेकिन इट विल मेक श्योर द मिनिमम सक्सेस, कि आप अगर स्टेयर केस पे जाएंगे तो आप डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप और इन चीजों पे जेन्युइनली करना है, और जितनी वेबसाइट है उस पे जेन्युइन अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं डालनी, और कोई इसमें ऐसी ऑल्टर्ड और मिस इन्फॉर्मेशन और ओवर इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा नहीं लिखना। जितना आता है उतना लिखें, क्लियर लिखें, प्रोफेशनली लिखें। मैं आपको कोई चीफ और एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए पूछ भी नहीं रहा चीजें। मैं आपको जिस पोजीशन के लिए अगर हायर कर रहा हूँ मैं उतना ही आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। डोंट एक्सपेक्ट के सबकी सीवियां सेम है, जो जूनियर है वो भी वो लिख रहा है, जो सीनियर है वो भी वो लिख रहा है, तो ऐसा नहीं कामरान होता। साहब, एक चीज जस्ट आपको बस कि आजकल जिस तरीके से जॉब्स आती हैं लिंक्डइन पे, हम यहाँ बैठ के अप्लाई करें या वहाँ पे जाके अप्लाई करें, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मे बी बांग्लादेश से, इंडिया से बहुत सारी ईमेल्स का एक फ्लो होता है। तो यू नो दैट कि एक सॉफ्टवेयर ये लोग यूज करती हैं, एचआर कंसल्टिंग, वो उसके में कीवर्ड्स को सर्च करते हैं सीवीज में और वो फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो क्या आपकी कंपनी में, या मे बी यू हैव वर्क समवेयर एल्स, यू हैव नॉलेज ऑफ दैट, तो ये एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, तो ताकि हम सीवी को इस तरह से डिजाइन करें? हाँ जी, इसको एटीएस, ये हसन रजा ने लिखा भी है, एटीएस बोलते हैं उसको। ये बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन ये वो लोग वर्क करते हैं, और मैं आपको बताऊं ये शायद 10% या 5% भी लोग यूज नहीं करते हैं।
किस लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम किसी भी इंटरनल ऑडिट की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त आप फाइनेंस की या आप इस वक्त मैथ्स हायरिंग की बात नहीं कर रहे। एटीएस काम करता है मैथ्स हायरिंग के ऊपर, कि आपने पोजीशन है और आपकी हर महीने पोजीशन आई होती है, तो जो एचआर होता है वो एटीएस यूज करता है। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है वो एटीएस यूज नहीं करता। मसलन इफ आई वर टू रिक्रूट, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एटीएस यूज नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिक चीजों का रिक्रूटमेंट करूंगा। और व्हेन आई वाज इन माय प्रीवियस ग्रुप, वो बहुत बड़ा ग्रुप था, उस पे जब हमने हायरिंग करनी थी तो माय चीफ एग्जेक्टिव ही रिक्वेस्टेड मी कि कामरान कैसे हायरिंग करें। वो कराची से उनका ताल्लुक था, ईवाई से थे, मैं भी ईवाई से था। तो मैंने कहा सर देखें, हम लिंक्डइन पेड लेते हैं, वो उस वक्त गालबन 1 लाख रियाल या 1.5 लाख रियाल का हमने सब्सक्राइब किया था। कंपनी को हमने रिक्वेस्ट की, भाई हमें, क्योंकि रिकमेंडेशन भी थी हमारी कि आप क्वालिटी रिसोर्स को कैसे लेके आएंगे, लिंक्डइन पे आप चले जाएं या फिर आप थर्ड पार्टी रिक्रूटर पे चले जाएं। थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट में मसला ये होता है कि वहां पे बायसनेस होती है। यानी कि आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बोलूंगा सर छोड़ें, आप सीवी दें, हम आप इन करवा देते हैं। अब वो क्या होगा कि वो सीवी जहाँ पे हम बताते ही हैं कि एटीएस ने किया, लेकिन वो एक्चुअली एटीएस मैं इंश्योर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो ऑडिटर हूं ना, मैं तो पैदा ही शक्की हुआ हूँ। और मजरे के साथ ये पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, अगर मेरे अंदर शक नहीं है ना, तो मैं आई कैन नॉट बी ए गुड ऑडिटर। शक करूंगा तो मैं आप रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा ना, अगर मैंने सब अच्छा अच्छा प्रोफेशनल ही सोचना तो। स्केप्टिसिज्म हम इसको हाँ बोलते हैं एग्जैक्टली इस जमाने में। जी जी बिल्कुल। मैं बस वैसे आप जस्ट ऑब्वियसली वो जार्गन में यूज नहीं कर रहा। सही कह रहे हैं आप। तो अगर आप देखिए, अगर आप एटीएस की बात करेंगे, एटीएस में होते हैं कीवर्ड, होते हैं सब कुछ होते हैं, लेकिन अगर आपकी एक अच्छी सीवी बनी हुई है ना, 90% ऑफ द रिक्रूटमेंट जो होती है वो मैनेजर करता है खुद। क्यों? मैनेजर ने काम लेना होता है, तो मैनेजर खुद पर्सनली देखता है कि यार इस बंदे में कितना, जो है वो कितने पानी में है, ये बंदा इसमें अंदर कितनी डेप्थ है, कितना नॉलेज है, कितना सर्टिफाइड है। और ये सिर्फ सर्टिफाइड है, हमने कितने ही लड़के, आपके फोरम से मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि कितने ही लड़के हैं, शायद एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तानी हम भी जुगाड़ ढूंढते हैं। कितने ही लड़कों का हमने इंटरव्यू किया है, मैंने रदनान साहब ने जिन्होंने लिखा था सीआईए है, हमने उनसे पूछा सीआईए के पार्ट कितने हैं, ये बता दो। क्यों? आजकल ये चल रहा है ऑनलाइन, आप ये पैसे पे कर दें और आप बैठे बैठे सीआईए बन जाएंगे, आपके नाम का सर्टिफिकेट भी आएगा, यूएस में आपका नंबर भी आएगा, आईआईए में आप मेंबर भी होंगे, सबको लेकिन क्या है, वो स्क्रीन शेयर करके वो इंडिया से बैठे टेस्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमें पता है, लेकिन मैं अगेन आई वुड से कि अपने अंदर डेप्थ और नॉलेज पैदा करें, इंट्रिंसिक वैल्यू अपनी पैदा करें। आप कहीं पे बैठे हैं तो लोग, उनको पता हो कि यार अगर इफ यू वर टू आस्क, गो टू कामरान, ही विल टेल यू व्हाट इज द स्ट्रेट थिंग। शॉर्टकट, इसलिए इन शॉर्ट देयर इज नो शॉर्ट। यस। सो अच्छा, तो एटीएस में ये है कि आप जो है ना 5-10% होते हैं जिसमें मैथ हायरिंग होती है, लेकिन उसमें भी इंटरनल ऑडिट का इतना नहीं होता। यानी कि अगर आप ऑपरेशंस की करें ना हायरिंग, और या इस तरह की करें जिसमें मैथ हायरिंग होती है, उसमें ज्यादातर यूज होते हैं। और ये कंपनी करती हैं जो रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं, वो एटीएस करती हैं। अच्छा, जो खुद जिस तरह अलबेक लिंक्डइन पे करता है वो नहीं जितनी करता। जॉब्स आ रही हैं आजकल लिंक्डइन पे, अगर मैं ऑब्वियसली कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, कीवर्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो जो जॉब्स आती हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है सारी की सारी मतलब फॉर हायरिंग होती है या कुछ इसमें और भी किए हैं? क्योंकि बाज दफा लोग का नहीं 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 फीडबैक नहीं, देते हैं ये हम अप्लाई कर रहे आई हैं, वुड एक 1000 एप्लीकेशन अप्लाई किए, एक जवाब नहीं आया, तो व्हाट डू यू थिंक इसमें कहाँ लैकनेस है? बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या है। एप्लीकेशन हमने, चूंकि हम इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, और ये बात आपकी हद तक ठीक है, मैं आपको अपना वर्जन सुनाता हूँ। मैं ही एज्यूम कर लें, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने जॉब लगाई थी और 1,000 एप्लीकेंट ने अप्लाई भी किया था, और 1,000 में से सिलेक्ट तो एक होना है ना, क्योंकि वैकेंसी एक थी। तो अगर तो आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे सर 99.9% लोग कह रहे हैं रिप्लाई नहीं आया। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जॉब तो एक की होनी है। अच्छा, इसकी बात नहीं कर रहा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हुआ क्या, कि जब हमने जॉब अप्लाई की, हमने लिखा कि हमें सऊदी चाहिए। तो जब एप्लीकेशन हमारे पास आई, तो फॉर एग्जाम्पल वो आई 159, 159 में से सिर्फ 10 सऊदी थे। 149, हमने जब आप लिंक्डइन प्रीमियम लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कि हर जगह पे मैं स्लाइसर लगा दूंगा, आर यू क्वालिफाइड, डू यू हैव सीआईए, डू यू हैव दिस, डू यू हैव एक्सपीरियंस। तो जब वो मुझे करके देगा, तो उसमें मैं बता दूंगा कि सिर्फ सऊदी जिसने यस किया हुआ है, आप उसकी सीवी दें। 149 स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। हम क्या करते हैं, बीइंग कैंडिडेट, हम क्या करते हैं, मेरे बहुत से लड़के जो पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ वाले हैं, जिनकी जॉब्स करवाई हैं, उनको मैं एक ही उसूल बताता हूँ कि देखो बच्चा, बात ये है, पहले जेडी पढ़ो वो मांग कह रहा है। अगर वो कह रहा है मुझे सीआईए चाहिए, तो आप सीआईए छोड़ के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो, आपकी जॉब नहीं होगी, आप समझो उसको चाहिए सीआईए। कहना कि एज ए आप चार्टर्ड कैंडिडेट अकाउंटेंट हो, उसको सीआईए चाहिए।
अरेबिक लैंग्वेज इज मस्ट, उसमें भी अप्लाई करे जा रहे हैं, करे जा। यस, इसलिए आप जब देखेंगे तो मैं लोगों को एक सिंपल फार्मूला बताता हूं कि जब आपने अप्लाई करना है किसी भी जॉब में, सिर्फ डेली की आपने 2 जॉब पे अप्लाई करना है। एक महीने का मैं लोगों को गारंटी देता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे जितने लोगों को मैंने फार्मूला बताया उनकी जॉब हुई है। सिर्फ दिन में 2 जॉब्स आपने अप्लाई करनी है, सिर्फ 2 जॉब, ज्यादा नहीं। बट विद कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी अंटिल द 30th डे। लेकिन वो 2 जॉब अप्लाई कैसे करनी है? खुद को पहले देखना है कि आप कितने पानी में हैं, कितनी डेप्थ है आपके अंदर। आपको पता है मैं सीआईए हूँ और मैं एसीसीए हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या कुछ हूँ, अच्छा ठीक हो गया। आपकी तरह के लाख बंदे और भी हैं। डोंट थिंक कि यार अगर मैं सीआईए और एसीसीए हूँ तो फिर मुझे आपके ज्ञान का क्या फायदा है। सर आपकी तरह के लाख बंदे और भी हैं जो आपसे ओवर क्वालिफाइड हैं। बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल। का फायदा ये होगा जो मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि स्क्रूटनी कैसे होती है। आपने ये देखना है, फिर आपने देखना आपका एक्सपीरियंस कितना है, जॉब के अंदर कितना एक्सपीरियंस मांगा है। डोंट एवर थिंक उसने 10 साल का मांगा है, आपका 5 साल का है, लेकिन चूंकि आपकी तारीफ बहुत होती है तो आप समझते हो कि खलास वो 10 साल का, मैं 5 साल में से ज्यादा काम कर दूंगा। नहीं, उसने 10 साल मांगा है, प्लीज विदड्रॉ। दूसरों को भी कमाने दें, वो किसी और के लिए जॉब है, आपके लिए नहीं है। आपको भी जॉब मिलेगी। सिर्फ आप लिंक्डइन में, बैट में, जितनी भी वेबसाइट्स है उसमें एक होता है ऑप्शन सेव का, फ्लैग का। सिर्फ आप पूरा दिन सिर्फ स्टडी करें जॉब को, उसके बाद आप उसको सेव कर लें। अगर 30 जॉब आई हुई है उसमें स्टडी करें, 2 स्टार्ट करें, डेली के बेस पे 2 स्टार्ट करें, और रात को बैठ के उसके अंदर प्रॉपर, अगर वो कोई नया लिंक खोल रहा है उसके अंदर पूरी वेबसाइट पे जाके पूरी प्रोफाइल देनी पड़ रही है, एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ रहा है। प्रॉपर तमीज से करें। क्यों? जिस तरह आप फेडअप हो रहे हैं कि भाई यार ये क्या नया लिंक खुल रहा है और वहां जाऊंगा, और ये आपकी तरह के 80% लोग इसी तरह फेडअप है। सिंपल मैथ है, वो आउट हो चुके ग्रेट। हैं, आपने आउट नहीं होना, आपने अप्लाई करना है। ठीक है? तो इस तरह जेन्युइनली अप्लाई करेंगे, जो आप समझते हैं कि रिक्वायरमेंट से आपकी जॉब प्रोफाइल फुलफिल मैच हो गई होती है। है, डेफिनेटली आपको कॉल आती है, डेफिनेटली कॉल आती है, क्योंकि Yes, हम खुद कामरान, कैंडिडेट ढूंढ रहे होते हैं। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एडवाइसेस, और काफ़ी इन डेप्थ आपने चीज़ों को खोल खोल के हमारे सामने रखा है कि हम यहाँ पे कुछ और समझते हैं और एक्चुअली होता कुछ और है। और सही बात है, आप लोग उस फेज से गुजर चुके हैं तो यू कैन बेटर इन अ पोजीशन टू एडवाइस अस। बस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आप बस कंक्लूड कर रहे हैं। तो अदान साहब, आपके कुछ फाइनल रिमार्क्स हो तो वो प्लीज़ आप ऐड कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्पेंडिंग अ टाइम विद द वंडरफुल ऑडियंस। माशाल्लाह, तकरीबन अराउंड 50 लोग हमारे साथ सेशन में रहे हैं, और ये इंशाल्लाह हम यूट्यूब पे भी डालेंगे विद इन योर पेयर। आप उसको बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ओपन अप योर माइक, sorry, camera, so that I can take a screenshot. तो इट्स अ वंडरफुल सेशन। अगर आप 1-2 मिनट के लिए अपने कैमरे ऑन कर लें प्लीज, ताकि मैं ये एक पिक्चर ले लूं। जस्ट जस्ट 1 मिनट, मैं पिक्चर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं और कंक्लूड करते हैं। ज़ाहिर सब ऑफिस से अटेंड कर रहे हैं, खुद के लिए डिफिकल्ट होगा इसको एक्सटेंड करना। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम और भी सेशन इस पे कंटिन्यू करेंगे, और भी चीज़ें पाइपलाइन में है। और मे बी हम इनके नेटवर्क्स भी, कामरान साहब, अदनान साहब के नेटवर्क यूज़ करते हुए और लोगों को भी इनवाइट करेंगे, ताकि जनरल ऑडियंस का फायदा हो, पाकिस्तानी ग्रो करें, इंटरनल ऑडिट कम्युनिटी ग्रो करे। यस, आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सो अदनान साहब, योर फाइनल रिमार्क्स। जी बिल्कुल, जो चीज़ें कामरान ने डिस्कस की हैं विथ रिगार्ड्स टू द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन सऊदी, उसके अलावा आई वुड like to repeat the same things that I just discussed, that please invest in qualifications, especially CIA, CISA, CFE। और हो सके तो अरबिक लैंग्वेज की भी मॉडरेट लेवल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करें, उसको अपनी प्रोफाइल्स पर में इंक्लूड करें, सीवी में इंक्लूड करें। और ओवरऑल जो जीआरसी फ्रेमवर्क है, यानी इंटरनल ऑडिट से थोड़ा एक स्टेप आगे जाके उस पे रिसर्च करें, उसमें अपने आप को डेवलप करें और कोशिश करें कि उसको मेंशन करें अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर। तो दीज थ्री थिंग्स इंशाल्लाह विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट विथ रेस्ट ग्रेट, ऑफ द एप्लीकेंट्स। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। लास्ट में जस्ट आपको मेंशन कर दूं, वी विल बी हैविंग आवर नेक्स्ट सेशन। हमने प्रीवियस एक सेशन किया था फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट की डिटेल इंटरनल ऑडिट के हवाले से, एक 3 आवर्स का सेशन रखा था। तो आई थिंक 3 आवर काफी लॉन्ग हो गया था, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। दैट वुड बी 1 आवर और 1.5 आवर। हम इस दफा इन्वेंट्री मैनेजमेंट को और वेयर हाउसिंग को कवर करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज, स्कोप, रिस्क,
और चीज़ों को कवर करेंगे। इसका इनवाइट आपको सेपरेटली ईमेल पे आ जाएगा, तो उसको भी आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। तो इट्स 3:05 हो चुके हैं। थैंक यू एवरीवन, वी आर एग्जिटिंग नाउ। तो आपका जो भी फीडबैक हो आप ईमेल पे हमें ज़रूर दें। अदनान साहब, कामरान साहब का मैं इंशाल्लाह लिंक्डइन का आपको इनकी प्रोफाइल शेयर कर दूंगा। यू कैन कनेक्ट देयर them as well and ask for any advice through LinkedIn message. Thank you everyone. Khuda Hafiz, take care.